So good evening, friends. I am Aarti Savur, CEO of Parisar Asha. I welcome all of you in our today's session, our weekly webinar, Ask the Expert series, which we started after COVID problem happened. So our today's session is all about social media stress. And this is particularly ये जो हमारा जो कार्यक्रम अभी हम लोग every week करते हैं, this is an extension to our another project, which is Positive Parenting and Child Helpline. With the great support of Capgemini, we started this project 3 years ago. और उसमें हमारे पास जो जुड़े हुए हैं वो सारे काउंसलर्स है, एकेडमिक काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, फॉर लाइक डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ और जो इश्यूज है आज बच्चों में और इवन फॉर द फैमिलीज फॉर दैट मैटर. तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं, फैमिलीज के लिए काम करते हैं, स्कूल्स के लिए काम करते हैं. तो I welcome once again all of you in today's session because आज का जो topic है काफी interesting है, social media stress. In fact आज we can see हम लोग आज Facebook live पे है. In today's world जहाँ पे कोविड की वजह से social distancing हो गया है, वहाँ पे social media ही एक ऐसा सामान है, साधन है कि जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी रियलाइज इन इनफैक्ट आप सब लोग भी सहमत होंगे कि मोर देन एडवांटेजेस देयर आर आल्सो लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सोशल मीडिया. Because when I discussed about this particular topic, many of the school principals, teachers, they all congratulated me and they said ki yeah, this is really an area of concern. So in today's session we are not going to discuss more about screen addiction because that is another topic. We will be focusing on social media stress because social media एक ऐसी चीज है कि it's more addictive. Definitely, like all different age groups are addicted to that. It's not only about children or adults or young adults. It's a universally we are all addicted, we are all connected. There is a lot of learning also happening, but at the same time there is a lot of stress also happening, and we get so many cases ki people are committing suicide because of this social media stress because they had been trolled and बहुत सारी ऐसी चीजें होती है which are not really good for anyone. So today we are going to discuss certain issues of social media and how to handle that. और अगर यहाँ पे आज parents है and especially Dr. मिहिर आज हमसे जुड़े हुए हैं on this particular session, and I'm really happy to see आज जो हमारे session के जो participants भी हैं, it's not only limited to one particular set or segment of society, but it's a complete mix, right? From I can see the private schools के जो representative है वो भी है, parents bhi hai, there are some other people who are joining, and I can see also these government schools who are also associated with us, they are also participating in today's webinar. So I welcome Dr. Mihir on our webinar Ask the Expert series. So उनके बारे में एक quickly आपको जानकारी दे दूं. Dr. Mihir Parekh is a child psychologist and special educator. He is the founder and director of Urja Consultancy and Remedial Center. He has done his doctorate in psychology and specialty is learning disability. He has also written many articles in Gujarati Midday. He is a counselor, he is a consultant in 11 schools across Mumbai. He is an author of the book Life Tweets, which runs into 2 volumes. He deals with children having various neurological disorders. He conducts workshops on parenting in various schools, colleges, and corporates. And next week, I think he will be launching his second part of his book, which is Battle of Life. And surprisingly, this particular book has many chapters which are related to our today's topic. So he is the right person to talk about this particular topic. And one more thing, Dr. Mihir, which you have not written in your biodata, which I would like to talk about, is the kind of feedback I received, like after circulating this, our collaterals in our different educators groups. So many educators, they told me, they said, oh, Dr. Mihir is going to be there and he is so popular amongst kids wherever you are working. So I think it's a very big achievement, like to be liked by all the children whom you are serving. So I welcome Dr. Mihir. And before we actually get into this social media stress or, like issues related to social media,
हमारे जो आज पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली कम्स अंडर सोशल मीडिया? मतलब हमें इतनी सारी अभी इंटरनेट के ऊपर साइट्स दिखाई देती है, तो उसमें से एग्जैक्टली हम किसे बोल सकते हैं कि ये सोशल मीडिया है, और लाइक इससे थोड़ा सावधान रहे, उसको अच्छी तरह से संभाले, क्योंकि सोशल मीडिया इज लाइक फायर। अगर आप अच्छी तरीके से उसे संभाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, so it can boost your business, it can boost your creativity, it can boost your communication and connection. but अगर इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया, then it might like a fire कि जलकर राख भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? All right, so namaste everyone and thank you. Sir, you are not very audible. आप थोड़ा सा loud, we need little more voice. Yeah. Am I audible now? Still little louder. Hello, am I audible? Maybe you can use your handset or something. 1 minute. क्योंकि पहले तो when we checked it was quite okay. अभी बहुत low लग रहा है voice. Can you hear me now? 1 minute, I'll just check with the other people also, because अगर मेरे इधर कहीं problem होगा तो पता नहीं. No, he's not too audible. Okay, he's not audible. Okay. Huh? Yeah, Dr. Mihir, you'll have to do something. Give me a minute, I'll just fix it up. Just bear with Is it your net connectivity? I think yes, because otherwise I can hear your voice very much properly, and I believe I just had a session before this, and just give me a minute. I'll try to fix it. Okay, Just sure, no problem, no problem. Yes, you can just get your headset or something. So participants, you'll have to bear with us, क्योंकि आज ये जो सोशल मीडिया है या फिर ऑनलाइन जो हमारा जो सारे कार्यक्रम चले हैं, दैट इज ऑन द मर्सी ऑफ वाईफाई, एंड हमारा जो मोबाइल कनेक्शन है उसके ऊपर रहते हैं. So with technology, yeah, there are a lot of things which comes handy, but at the same time there are certain troubleshooters also, so just bear with us. Talk about our initiatives, परिसर आशा के जो जैसे मैंने आपको बताया, this particular webinar is the extension of our positive parenting and child helpline. तो ये हेल्पलाइन हमने 3 साल पहले चालू की थी, और क्योंकि हम लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने सारे जो स्कूल्स अगर रिप्रेजेंटेटिव है, सो दे नो कि वी परिसर आशा वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर पास्ट 38 years. For 38 years से we are working with schools to improve quality of education at par with international standards. क्योंकि जो हमारी 80% आम जनता है, they can't afford that quality education or the quality education.
government says right to education, but we truly believe that right education, किस तरीके की शिक्षा हम लोग बच्चों को देते हैं उसके ऊपर उनका भविष्य निर्भर है. तो ये सारे प्रोसेस में we are conducting teachers training programs. We have our worksheets, workbooks which are going to the students. We also have many other programs which are, enrichment programs. Is Dr. Meher, are you there? Yeah, am I audible now? Yes, you're audible. Yeah. So I was just filling the Great, gaps in between, so you can start now. And really apologies for that. All right, I hope I'm audible now. Yes. Okay. So, good evening, everyone. Namaste, and thank you, Aarti ma'am, for inviting me for this particular webinar. In fact, I think जो आज का topic social media and managing stress है, that is the need of the hour. और मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत conflicting आज इसके लिए हो जाएगा क्योंकि unfortunately हम सब, as you rightly said, कि सोशल मीडिया का शिकार बहुत ही बुरी तरीके से हम, this entire generation I would say, at the same time the coming generation इसका शिकार शायद और बुरी तरीके से हो सकता है. And interestingly जो हमारे पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स के एज के लोग भी are actually getting diverted and they do have accounts on Facebook and Instagram. So हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं. So आपने जैसे चीज बोली कि मुझे ऑडियंस को ये बोलना है कि सोशल मीडिया में क्या क्या आता है. So let's list a few. जैसे आप लोग सब जानते हो कि सोशल मीडिया में we have Facebook, we have Facebook है, फिर Instagram, also we could say WhatsApp, then Snapchat. ये सब माध्यम है जहां पर आप आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो. एंड द मोमेंट द इंफॉर्मेशन गेट्स शेयर्ड, उसके बाद सामने एक रेसिप्रोकेशन, मतलब के सामने लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ये सिंपल डेफिनेशन में हम सोशल मीडिया के बारे में बोल सकते हैं. राइट. आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग बिफोर वी स्टार्ट. 3 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा लिंकिंग टू दिस टॉपिक. So when I was after I finished my 10th standard, तो हम लोग एक दिन, तो वो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम लोग रात को जुहू बीच गए with my family and my building neighbors. तो उस टाइम पर हमारे जो बिल्डिंग के जो नेबर अंकल है वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम एज अ टीनेजर, कॉलेज में क्या सबसे पहले तुझे खाना है पीना है. दो ही वाज माय वेल विशर. तो मैंने बोला कि अंकल आई वांट टू एक्चुअली टेस्ट व्हिस्की. ओके. तो फिर उन्होंने बोला कि ओके दैट्स सो नाइस, लेकिन तुझे एक चीज पता है कि व्हेन यू डू दैट, तो कोई भी अगर तू एक पूरा बर्तन भर के दूध पी जाएगा तो तुझे उसका जुलाब हो जाएगा. राइट. लाइकवाइज अगर ये व्हिस्की और व्हाटएवर यू आर वांटिंग टू ड्रिंक, अगर तूने ये कंट्रोल के बाहर किया तो you are definitely going to face a lot of bad effects. Right. तो एक ये जो चीज है उसमें से if we can read between the lines कि मैं जो एंड में बोलना चाहता था वो मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, that I am passing a message of moderation. कि कोई भी चीज अगर मॉडरेटली की जाए तो it is not poison, but कोई भी चीज जब ओवरली की जाए तो it is definitely a poison. So this is one. नंबर 2, जो अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग है A to Z, उसमें इंटरेस्टिंगली वी हैव अल्फाबेट D, C and D. ओके. आई एम रिपीटिंग व्हाट किरण बेदी सेड. आई लव हर स्टेटमेंट. तो वो कहती है कि D stands for birth, D stands for death. ओके. तो ये बर्थ और डेथ के बीच जो C पड़ता है is nothing but C for choices. Right. Wonderful. And as individuals, thank you. So as individuals, as parents, as adults, as आपका जो भी रोल हो, okay, अगर ये टीनेजर सुन रहे हैं तो ये उनके लिए भी है that what we are the product of whatever choices that we make in life. तो अगर ये बर्थ और डेथ की जर्नी में हम जो जो choices लाइफ में लेंगे
वो चॉइसेस हमें अपना फ्यूचर बना सकती है या बिगाड़ सकती है. So I think this is a small message that a parent can pass to their children, teachers can pass to their students. Okay. और तीसरी चीज कि अपना जो टॉपिक है, नाउ आई एम टचिंग अपॉन द टॉपिक विच इज स्ट्रेस एंड सोशल मीडिया. तो हम स्ट्रेस किसे बोलेंगे? इफ एनीबडी वांट्स टू अनम्यूट और कैन टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस. स्ट्रेस कब अपने बॉडी में आता है? They can chat also, yeah, because we have muted everyone. Otherwise, बहुत ज़्यादा because we have many participants. It's gone beyond 100. So then it becomes little difficult to manage. So अगर participants को participate करना है ये discussion में, तो आप कृपया chat box का इस्तेमाल कीजिए. So when one has overworked, when you cannot handle the situation, what? Okay, I'm still trying to be loud. Dr. Mihir, maybe you can hold it, that mic very close to your lips, maybe, like your mouth, so it will be much more audible then. Okay, all right. So अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो I'll put it very simply. Say supposing एक छोटी सी लड़की है जिसने बचपन से अपने घर में ये सुना है कि you are a beautiful girl, you are a beautiful girl. तो ये जो लड़की है वो पूरा अपना she grows with this thought in her mind, और उसके माइंड में ये एक आइडिया बन जाती है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ. एंड द मोमेंट वो बाहर जाती है और जब वो अपने से सुंदर किसी और लड़की को देखती है और शी हियर्स दैट ओ शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड व्हाट माय ब्रेन हैज अबाउट माई सेल्फ, वो जब मैच नहीं होता है तब स्ट्रेस वहां से स्टार्ट होता है. Okay, so that is a very simple definition. Something that you have about yourself is not matching with the external world. We can say that is stress, right? So now I put it on to Aarti ma'am to please ask me specific questions about the content. Yeah. Okay, so yeah, thank you, Dr. Mihir, for letting us know what exactly is stress and what exactly is social media. So ये दोनों का कॉम्बिनेशन आज हमारा आज का टॉपिक है जो स्ट्रेस और सोशल मीडिया से रिलेटेड है. तो अगर आप ये सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है अलग अलग एज ग्रुप पे कैसे हो रहा है, बिकॉज आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गेटिंग मेनी केसेस, और हमारे हेल्पलाइन पे वी गेट एन नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स कि उनके इतने अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ये सोशल मीडिया के. तो इफ यू कैन जस्ट हेल्प आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग एज ग्रुप में, बिकॉज अलग अलग एज ग्रुप का जो माइंडसेट है वो भी अलग अलग रहता है, वो मॉडिफाई होता रहता है, उसमें बहुत से बदलाव आते रहते हैं. तो उसका इम्पैक्ट जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो किस तरीके से ये अलग अलग एज ग्रुप पे होता है. Okay, so I think we start with the youngest age group जहाँ पर बच्चे आते हैं. So ideally this is for all the parents के 2 साल से पहले I think all the doctors would recommend कि आप आपके बच्चे को सेल फोन मत दो. All right, and अगर 2 साल से पहले हम बच्चे को जब सेल फोन या कोई भी चीज अगर देते हैं तो स्पेशली द इलेक्ट्रिकल गैजेट, तो वो एक वन साइडेड कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू अ पेरेंट जहां पर वो अपने बच्चों के साथ बात करता हो. तो सबसे पहले इम्पैक्ट ये आता है कि बच्चे का स्पीच लेट डेवलप होता है अगर वो सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन में जा रहा है तो. ऑलराइट, नाउ आई वुड से एक माहौल जहां पर अगर मैं प्राइमरी स्कूल बच्चों की बात करता हूँ या सेकेंडरी स्कूल बच्चों की बात करता हूँ, तो व्हेन द चाइल्ड हियर्स द सेम थिंग अमॉन्ग द पेरेंट्स, क्योंकि आज हर कोई पेरेंट्स सोशल मीडिया पर है, तो व्हाट्सएप पर स्कूल का ये होमवर्क आया, व्हाट्सएप पर तेरी टीचर ने ऐसा बोला. तो ग्रेजुअली हम लोग अभी ये नया चेंज देख रहे हैं इन दिस पेंडेमिक एंड अ न्यू नॉर्मल के पेरेंट्स ने बच्चों को व्हाट्सएप पर डाल दिया है. ओके, अ सीनियर केजी चाइल्ड आल्सो इज ऑन व्हाट्सएप, और 4th स्टैंडर्ड के बच्चे तो अपना फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब में खुद की चैनल भी होती है.
तो ये कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ा इफेक्ट ये आ रहा है बच्चों के ऊपर, दैट द कंसंट्रेशन लेवल्स आर फॉलिंग डाउन। ये क्यों होता है, जो ब्रेन कैसे इस पर काम करता है वो हम आगे बात करेंगे। सो द कंसंट्रेशन लेवल्स फॉल डाउन। नंबर 2, कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो अपने फैमिली में कम होकर, जैसे कि आपने बच्चे को एक साधन दे दिया है टू कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो बच्चे सिर्फ यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन साइकोलॉजिकली और मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तीसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं थोड़ा तो हाँ डेफिनेटली वो बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस पे, उनके स्टडीज पे ये असर करता है। चौथी चीज, अगर बच्चा लेट रात तक अगर मोबाइल देखता हो 9 बजे 10 बजे तक, तो दैट इज कॉजिंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस इन चिल्ड्रन। पांचवी चीज, बच्चे के अंदर अननेसेसरी कोई चीजों का फियर आने लगा है जो विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज नॉट रियल। तो फियर मतलब हम लोग, हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। ओके, एंड देन अगर पूछेंगे कि बेड वेटिंग क्यों किया, तो दे से दैट यू नो अंकल ने मुझे ऐसी कुछ पिक्चर दिखाई मेरे साथ, आई डोंट नो दिस अंकल बट अंकल शेयर समथिंग एल्स, सो दैट अगेन वी विल टॉक अ लिटिल लेटर। फिर अगर जब हम लोग सेकेंडरी स्टूडेंट्स पर आते हैं, मतलब नियरली टीनेजर्स, so teenagers unfortunately are the most hit population here, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो टीनेज माइंड होता है वो सोशली कम एक्टिव हो जाता है अपने फैमिली में, और वो बाहर जाकर अप्रूवल देखने लगता है। राइट, सो अगर आप देखोगे तो टिकटॉक जैसा एक ऐप था, एंड नाउ आई थिंक वी हैव इंडियन टिकटॉक, वहां पर टीनेज को एक रिकग्निशन मिलता है, और जिसके कारण वो लोग ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर एडिक्ट होना शुरू करते हैं। एडिक्शन ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट। तो जिसके कारण क्या होता है, ऑल द पेरेंट्स विल कम एंड से के सर मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मैं मेरे बच्चे का मोबाइल छुड़ा दूं। वो जब देखो तब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और पिक्चर्स ही पोस्ट करते रहता है। ओके, तो कहीं ना कहीं द सोशल कम्युनिकेशन इज गोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, विद रिलेटिव्स, और भाई बहन के बीच में भी कम्युनिकेशन कट हो रहा है। और अगर एडल्ट्स में देखने जाए तो अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा, अगर इसका साइड इफेक्ट देखने जाए, तो फैमिली टाइम बहुत कम हो गया है, वन। नंबर टू, वर्चुअल अफेयर्स। ओके, जहाँ पर somebody who is sitting कोई दूर जगह पर है, ओके, एंड रात को द हस्बैंड वाइफ डू नॉट स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दे डोंट टॉक टू ईच अदर, बट दे आर कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ और आपस में भी वो बहुत कम हो गया है। एंड every time, constantly they are so much busy in their mobile phones that half of the communication, so there is a communication barrier happening because of this. और अगर बूढ़े लोगों की बात की जाए, तो बूढ़े लोग they are struggling to be on social media because they want to be on social media, और कहीं ना कहीं उनके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चन कम होकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया क्वेश्चन बढ़ गया है। तो दीज आर सम वेरी स्मॉल थिंग्स व्हिच वी कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस, के mobile phones, at the same time social media on mobile phones have completely taken over. Yeah, so thank you so much, Dr. Mihir. Very well you explained us. But यहाँ पे एक और एक मुझे क्वेश्चन लगता है कि जैसे आपने बताया, we all are addicted to social media today, right from adult to like small kids also. But when you are addicted, but why there is not yet that happiness quotient? Like why there is so much of anxiety, why there is so much of depression by using, like ये बहुत ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट कि आपको कोई हैप्पीनेस मिल रहा, मे बी इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, बट आई हैव देयर वाज अ केस विद अस कि जहाँ पे दीज चिल्ड्रन एंड इवन एडल्ट्स टुडे लाइक दे आर काउंटिंग ऑन देयर लाइक्स, कि एक आध पोस्ट डाल दी तो लाइक दे आर काउंटिंग ऑन लाइक्स, ओके ये पोस्ट को मुझे कम लाइक मिले हैं, सो व्हाट मस्ट बी द रीजन, सो worrying about that reason कि okay how do I work on that, so can you please explain us ये मतलब ये mind चलता कैसे है? ओके, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। से फॉर एग्जांपल मैंने आज एक गाड़ी खरीदी, और वो जो गाड़ी है जिसको मैं बहुत ही शोशा करके दिखा रहा हूँ। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं देख रहा हूँ कि मेरे नेबर्स देख रहे हैं लेकिन मुझे पूछ नहीं रहे कि ये गाड़ी कब ली, कैसे ली, कितने की खरीदी। सो मैं आई विल गो टू माई नेबर्स हाउस
and I will give them sweets. Okay, so and I will brag about my car. So then the neighbors would say कि हाँ कभी हमको भी आपकी गाड़ी में एक ride दे दो, right? The moment I go out of the house, the neighbors will start saying कि अरे ये तो बहुत black money कमाता है, ऐसे कर करके उसने गाड़ी ले ली, right? And the moment they say this, जिसने गाड़ी ली है वो जब उसके नेबर के घर से बाहर निकला, तब वो अंदर से क्या सोचेगा, देखा मैंने उसको कितना जलाया, उसका तो मुंह देखने जैसा था कि जब मैंने बोला कि मैंने मर्सिडीज गाड़ी ले ली. यस, so this is nothing but a human nature जहां पर वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की ट्राई करता है और दूसरों को जलाने की. दूसरों को जलाने की. ओके, so I still remember कि there was one year जहां पर I had a lot of abroad trips for work purpose and for travel purpose also. तो उस टाइम पर people kept on telling me that मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलते रहती हूँ कि ये लोग तो कितना घूमते हैं, हम लोग कहाँ घूमते हैं, राइट? सो आई ऑलवेज फील ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. तो हम क्यों घूमे, किसके कारण घूमे, कितने प्रॉब्लम से घूमे, फॉर एग्जाम्पल दैट इज नॉट सीन ऑन सोशल मीडिया. एट द सेम टाइम कंपेरिजन, कमिंग टू योर पॉइंट, कंपेरिजन अपनी फैमिली नहीं करती है, दूसरों की फैमिली करती है. जैसे लोगों की एक आदत होती है, देखो अभी तो पोस्ट थी कि वो लोग FB पे हम लोग जैसे अपने आप को लोकेशन में टैग करते हैं, हम लोग ये थिएटर में है, हम लोग ये रेस्टोरेंट बार में है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी पोस्ट उधर थी, अब वो लोग ये 5 स्टार होटल में है, लेकिन हम कहाँ पर है, हम तो पूरा दिन संडे घर पे ही बिताते हैं. तो ये जो चीजें की कंपैरिजन है, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इंफीरियोरिटी, एंजाइटी मतलब नर्वसनेस, अकेलेपन के कारण डिप्रेशन, सिर्फ लोगों का लाइक देख देख कर. सलमान खान ने, फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान ने कैटरीना कैफ को 4 लाख रुपए का पर्स दिया. हमारी कहाँ औकात है कि हम 4 लाख रुपए की एक बाइक भी खरीद सकें. सो लुकिंग व्हाट इज नॉट विद अस, ओके, वो चीजों का देख देख कर लोग अपने आप को इतना डीमीन करने लगे हैं कि therefore it is leading to a lot of dissatisfaction. I would like to add a very important term, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा. It is called as FOMO, FOMO. Yes, right. Very popular. FOMO, yeah, it's a very popular term in especially these our youth. FOMO. Yes. Yeah. So it means fear of missing out. मतलब कि हमसे कुछ छूट गया, हमसे ये क्यों नहीं हो पाया. तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण लोग इतने सारे चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने की ट्राई करते हैं. चल बॉस तेरे पास है तो मेरे पास भी ये चीज है, बिकॉज ऑफ विच दिस पर्टिकुलर थिंग्स कीप ऑन राइजिंग. ओके, नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि ब्रेन में ऐसे क्या चलता है, ऐसा क्यों होता है. या सो दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स. जो आप आपके बच्चे को एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो जब हम लोग फेसबुक पे जाते हैं या तो इंस्टा पे जाते हैं, कोई भी जगह पर मैंने मेरी पिक्चर अपलोड की, तो थोड़े टाइम बाद वी विल गो एंड चेक कितने व्यूज हुए, कितनी लाइक्स हुई, कुछ कमेंट आया कि नहीं. एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू ऑल, आई एम सेइंग ऑल ऑफ अस. ओके, मैं आज मीठी मीठी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ. दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज ऑल्सो फॉर मी, बिकॉज वी ऑल आर बैडली अफेक्टेड. तो जब मैं लाइक देखूंगा, वाओ आज के वीडियो को तो आज 1000 लाइक मिली, मतलब कि एक लाइक जो है वो मेरे ब्रेन में एक केमिकल को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है डोपामीन. ओके, ये थोड़ा टेक्निकल मेडिकल टर्म है. एक केमिकल आता है डोपामीन, और डोपामीन अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में कब रिलीज होगा, जब मैं चॉकलेट खाऊंगा तब. ओके, जब मैं मेरी मनपसंद पाव भाजी खाऊंगा तब, जब मुझे कोई भी मेरी फेवरेट चीज करने को अच्छी लगती है और मिलती है तब. when this dopamine is released in our brain, वो मेरे ब्रेन को एक सिग्नल देता है, वो मेरे ब्रेन को एक सिग्नल देता है, yes I am satisfied. So this word is very important, I am satisfied. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है. So there is something which is called as variable reinforcement.
वेरिएबल रीइंफोर्समेंट मतलब कि आज मेरे एक वीडियो को 4 लाइक मिले, कल मेरे एक वीडियो को 400 लाइक मिले, तो 400 लाइक मेरा एक बेंचमार्क हो गया कि 400 से तो अब ज्यादा ही मिलना चाहिए। इसके लिए जब मैं परसों वीडियो पोस्ट करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 410 होना चाहिए, फिर 500 होना चाहिए। तो ये लाइक्स के चक्कर में धीरे 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 क्या होने लगता है, बिकॉज टू गेन दैट सेटिस्फैक्शन मोर आई गेट मोर इनटू एडिक्शन। so this is how the cycle of addiction gets built up। तो ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलता है, वाह यार ऐसे तो लाइफ में तुझे कोई पूछता भी नहीं है, और तेरे देख तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ गए हैं। तो आजकल टीनेजर्स के पॉपुलेशन में फॉलोअर्स जितने ज्यादा होना, उनको वो, तो द नंबर ऑफ फॉलोअर्स इज इक्वल टू बीइंग फेमस इन द ग्रुप and is equal to I am more popular, I am more liked, and therefore I am good। तो कहीं ना कहीं लाइक्स के हिसाब से अपनी सेल्फ वर्थ को डिसाइड करना, ये हम टीनेज पॉपुलेशन में अनफॉर्चुनेटली देखने लगे हैं। सो आई वुड से हु इज द बेस्ट फ्रेंड। हम लोग देखते हैं ये फ्रेंडशिप डे आती है, तो फ्रेंडशिप डे पे मुझे 1000 मैसेज आते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और फिर एंड में मैं बोलूंगा कि ओके यार हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। एज अपोज टू शाम को आपको मिलने आपका दोस्त आता है 2 मिनट के लिए, सो आई वुड से ही इज योर बेस्ट फ्रेंड एज कंपेयर टू दोस 1000 फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन टच इससे छूटने लगा है। आई शेयर यू अ वेरी फनी एग्जाम्पल। माई फ्रेंड्स वाइफ, ओके, तो उसने मुझे उस दिन वेरी लाइटली शी टोल्ड मी कि यू नो मिहिर, तेरे फ्रेंड ने मुझे कल हमारी एनिवर्सरी थी एंड ही डिडंट विश मी। तो मैंने उसको हंसते हंसते बोला कि क्यों, उसने तुझे विश थोड़ा तो कुछ तो किया होगा ना। तो यू नो शी सेड मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और वीडियो बनाया और पूरे दुनिया की लाइक्स मिली, हम लोगों ने पूरे दुनिया को थैंक यू बोला। रात को 12 बजे ही रियलाइज ओ माय गॉड आई फॉरगॉट टू विश यू, बट ही विश्ड मी फर्स्ट at 12 o'clock on social media। ओके, सो एक घर में रह के भी हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को विश करने के लिए। yes, yes। और कहीं ना कहीं ये जो साइट है उसमें भी कैसा है कि जिसके ज्यादा फॉलोवर्स, राइट, दे आल्सो गेट सम कैशबैक, सम मनी एंड ब्लू राइट, टिक्स। तो यस, वो पाने स्पेशली के लिए, यूट्यूब इज पेइंग, राइट। यूट्यूब पे अगर आपके एक सर्टेन लेवल के आगे जो फॉलोअर्स जाते हैं, देन द चैनल स्टार्ट्स पेइंग यू। और जैसे मीडिया पे दिखाते हैं अबाउट सम वेरी फेमस सेलिब्रिटी, एक पोस्ट डालोगे तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। सो when the teenagers who live in the world of black and white, उनके लिए ग्रे वर्ल्ड नहीं होता है, तो उनको वो 2 करोड़ दिख जाएगा, तो that will keep on dragging them ahead and ahead to get more and more likes। So do you have any tips or tricks, something to, you know, like still keep our mind stable and use social media, कि ताकि हम लोग उसके वी आर नॉट, यू नो, लाइक एडिक्शन के शिकार ना बने, बट एट द सेम टाइम वी मैनेज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी थिन लाइन कि आप कब वो उसके एडिक्टेड हो जाओगे। क्योंकि एज यू वर ओनली सेइंग कि आपके पोस्ट को भी हम लोग देखते रहते हैं कि यू नो कितने लाइक्स मिले, क्या हो गए करके खुद के पोस्ट को, दो वी प्रीच अदर्स। सो यहाँ पे तो मतलब टीनेजर्स का तो सवाल ही नहीं उठता, इफ एडल्ट्स हु आर, यू नो, लाइक आल्सो हेल्पिंग अदर्स getting rid of, you know, like all these addictions, but क्या मतलब, is there any kind of technique which everybody can हम लोग यूज कर सकते हैं? सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म टेक्निक, ओके, और एक लॉन्ग टर्म टेक्निक यहाँ पर ज्यादातर हम सब पेरेंट्स है, तो हम लाइमलाइट में कब आना चाहते हैं, सी इट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। बचपन से अगर किसी ने किसी को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला हो, तो वो हर तरीका ढूंढेगा कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, राइट। ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक पैसिव और अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जिसको हमें पता भी नहीं होता है कि ओ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। सो इट इज अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स कि आप आपके बच्चे की छोटी से छोटी
एफर्ट को अप्रिशिएट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चे सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन ही मांग रहे हैं. ऑल द हस्बैंड शुड अप्रिशिएट देयर वाइफ, ऑल द वाइव्स शुड अप्रिशिएट देयर हस्बैंड्स, एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन शॉर्ट शुड अप्रिशिएट ईच अदर, क्योंकि ये अप्रिसिएशन के लिए ही हम बाहर जा रहे हैं, राइट? सो अ वाइफ वुड जस्ट वांट टू हियर वन थिंग फ्रॉम हर हस्बैंड कि आज दाल अच्छी बनी है, ओके, as compared to the husband will just write a post, I'm fond of your food. तो वो 40 लोग देखेंगे, लेकिन वो वाइफ के मुंह पर नहीं बोला है कि तेरी दाल अच्छी बनी है, right? So very simple thing, express your emotions, whatever you are feeling. If you are feeling angry, express. So unfortunately ये जो icons होते हैं, emojis जिसको बोलते हैं, उसने हमारे emotions को भी दबा दिया है. रोना तो आजकल के बच्चे जोर से रो नहीं सकते हैं, जोर से हंस नहीं सकते हैं. The only reason is because we have learned to suppress our emotions. और suppressing of emotions is like a bottle of champagne के ऐसे करके हिलाया तो वो जब जोर से फूटेगा तो तब जाकर फिर एक ही बार में ब्लास्ट होता है, and then the relationship suffers. So learn your children, appreciate your children in order कि वो लोग बाहर के ऐसे जाल में ना फंसे, because they know कि I know I love myself, so loving yourself is the first key. सुबह एक मैसेज आता है, आप गर्म पानी पियोगे तो कोविड चला जाएगा, ओके? तो दूसरा बोलेगा अरे गर्म पानी मत पियो क्योंकि उससे गला बैठ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल. तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर एनीबडी इज फ्री टू टॉक एंड एक्सप्रेस व्हाट एवर दे वांट, ओके? लेकिन एज पेरेंट्स, एज चिल्ड्रन, एज टीनेजर्स हमें ये देखना है व्हाट इज राइट. तो पहले उसको वैलिडेट करो और उसके बाद आप उसको अपने ऊपर अपनाओ. बिकॉज इफ यू डोंट वैलिडेट तो वो आपको ऐसा भी बोलेंगे कि अगर आप आपके मुंह के ऊपर एसिड घिसोगे तो आप गोरे हो जाओगे, एंड दैट्स अनट्रू. ऑलराइट? Yeah, and actually I see so many educated people forwarding these kind of messages without even understanding ki whether it's a true message or aise hi, like forwards hai. So I think very valid point you are, like telling to our audience today कि जो कोई भी message आता है, what I started doing, Dr. Mir, I would like to share over here कि जब भी ऐसे कोई मैसेज आता है कि जहाँ पे मुझे डाउट है कि ये सही है या जस्ट like फेक मैसेज है, so I copy paste that in Google. And immediately you get to know, and तभी then I decide कि okay ये मुझे आगे forward करना है या नहीं करना है. So I think this is a very very important aspect what you are talking about कि don't spread rumors, क्योंकि हम लोग विदिन सेकेंड, मतलब कहीं वो टिम्बकटू में कुछ हो गया, विदिन सेकेंड उसका पूरा फायर पूरी दुनिया भर में आज फैल जाता है. The social media has so much of power. आपने लेकिन sorry go on please. नहीं, I was just saying कि अगर rightly use किया जाए तो it can really create such a harmony in our society, but unfortunately we are creating so much of disharmony. मतलब you see so many negative posts and इतने मतलब violent post we see on Facebook, on Twitter. Twitter is like a major, like जहाँ पे कोई किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है. So would you like to say something about that, ki how to be a little more careful using these kind of medias? Yes. Also would like to add कि as you rightly said in the beginning कि हमेशा social media गलत नहीं होगा, okay? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं for example because of this social media, क्योंकि ये एक छोटी सी चिंगारी है और अगर लग गई तो it spreads across the entire globe positively. अगर तो यस, हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया हम लोग कितनी सारी चीजों को चेंज कर सके हैं, जस्टिस भी ला सके हैं. फॉर दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऐसे अकाउंट भी बनाए जहां पर पीपल कैन एक्सप्रेस या ग्रीवियंसेस और उनको सपोर्ट सिस्टम उस चीज को लेकर मिलती है. बट ये प्रोसेस में, जैसे मैंने ये चीज इसके लिए बोली बिकॉज इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर I happened to forward one message to one of my colleague who was a lady. तो उसमें एक ऐसा लाइन था, योर फेस इज लाइक अ मून, ओके? तो वो गया और वो उसके हस्बैंड ने पढ़ा और घर पर बहुत धमाल हो गई. एंड देन द लेडी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि सर प्लीज आप शाम को मेरे हस्बैंड से मिलो. एंड देन मी एंड माय वाइफ वी बोथ वेंट एंड वी मेट हिम
and the husband was bubbling in anger. Okay, you know, how dare you tell my wife moon as a face as a sir. That day onwards, I stopped forwarding messages. But what was the reaction of your wife? I would like to know that. No, so she told me that, you know, क्यों मैसेज फॉरवर्ड करना है किसी को, आपने पढ़ा था क्या उस चीज को लेकर. सो मैं उसको पॉजिटिवली ले रही हूँ, बट आपने देखा कि सामने वाला उसका जो हस्बैंड है वो कितना नेगेटिवली ले रहा है. सो नॉट एवरीबडी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस. Right. ये एक So चीज I है. think, yeah, coming to that, since you, like broach this topic of relationship issues today because of social media, I think maybe it will be very interesting to know more about that. क्योंकि आज जो I would like to say one example यहाँ पे कि जो हमारे हेल्पलाइन की एक केस है कि वो जो लड़का है इज अ यंगस्टर 18 साल का, ही हैज 200 ऑनलाइन गर्लफ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हम लोग वही सोच रहे थे, बेटा तो तू तो हमारे देश का नाम तो बहुत रोशन कर रहा है पूरी दुनिया में. बट see the fun, I mean 200 online girlfriends, they are into sexting, they are into I don't know what all things they are into. एंड पेरेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं है कि बच्चों की दुनिया में क्या चल रहा है. क्योंकि आई थिंक एटलीस्ट मे बी आई डोंट वांट टू से द नेम ऑफ द मेक, बट देन यू नो देयर आर सर्टेन फोन्स, दे आर, you can't access all the sites, but there are other certain phones where you can access everything, especially Android network, everything, all sites are open. And so how do we deal with all these situations? And आज unfortunately आज हमारे बच्चों को we cannot say no because आज online जो पढ़ाई जो हो रही है वो भी online हो रही है. So Yes. how do we control that कि मतलब पेरेंट्स को क्या बाजू में ही बैठ के रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि बच्चों को हम लोग कैसे समझाएं? मैम मैं उसी को एक्सटेंशन में और मतलब वही बोलूंगा कि सबसे पहले कनेक्टिंग विद योर चाइल्ड इज द की. ओके, रात को 9 बजे के बाद इफ इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग सेलफोन्स कम यूज करें. बच्चों के सामने देख कितने लाइक मिले हैं, कितने कम लाइक मिले हैं, इसको ज्यादा शेयर नहीं हुए हैं, ऐसी बातें कम करें. क्योंकि एडल्ट्स का यहाँ पर सबसे बड़ा ज्यादा रोल हो जाएगा. आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स who make TikTok videos with their children. Yes, I have seen. तो कहीं ना कहीं बच्चे को और रीइंफोर्समेंट मिलता है. एक सिंपल सी चीज है, अगर आप जब सेल्फी लेते हो, इफ एवरीबडी कैन डू दिस विथ मी, सामने अगर फोन लो और फिर अगर सेल्फी करो तो अपने आप अपनी जो आंखें होती है वो थोड़ी क्रॉस में हो जाएगी. बट पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड दिस मैसेज करेक्टली. जिसको भी उसके बाजू में अगर कोई भी सेल्फी लेना होगा तो सब लोग ऐसे ही करके ये करेंगे. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट द पर्सन हु इज टेकिंग द सेल्फी हैज टू ऑटोमेटिकली उसकी आंखें क्रॉस हो जाती है. सो इट इज अ लर्न्ड इफेक्ट, अ कंडीशनिंग इफेक्ट. सो when my mother is also on social media and then the mother says कि आप आपका social media क्यों इतना जल्दी ये एज पे शुरू किया, why did you do this, so then the parent cannot tell the child कि तू उसको मत यूज कर, because the parent is a wrong role model. That's very important, right? Number 2, कि अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपका बच्चा मोबाइल वगैरह कम यूज करे और फॉर दैट मैटर एनीथिंग, सो 11 साल के पेरेंट्स अगर ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सो दे आर एट द एडवांटेज. कोई भी आदत अगर हमें डालनी होगी बच्चों के अंदर, so that will go till 11 years of age very nicely, because children won't question much. They will question but won't question much. So what you are putting is the values in children. After that, after 11 years, children learn to use the mindfully anything. फिर वो सिगरेट हो, शराब हो, या कोई भी नेगेटिव चीज हो. क्योंकि 11 साल के बाद उसको ये पता चलने लगता है कि माय पेरेंट्स वर सेइंग नो टू दिस एंड देयर मस्ट बी सम रीजन टू दिस. So then when they don't follow it, which means that they are following their ethics. So kahin na kahin value system builds up only till 11 years of age. Then what children follow is ethics, right? So वो एक रोल मॉडलिंग के थ्रू आएगा. तीसरी चीज कि अगर आपको बच्चे को या एनीबडी हु वांट्स टू कर्ब द यूज ऑफ सोशल मीडिया, कहीं ना तो उसका एक टेक्निक होता है फ्लडिंग. फ्लडिंग मतलब कि मैंने एक ही दिन में सोच लिया आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया और मैं मेरे सब मोबाइल एप्स को उड़ा दूंगा. एक्सट्रीम स्टेप इज कॉल्ड एज फ्लडिंग.
तो मैंने फेसबुक उड़ा दिया, इंस्टा उड़ा दिया, व्हाट्सएप उड़ा दिया, तो मतलब मैं फोन यूज करूँ तो क्यों करूँ? लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि एडिक्शन इतना सारा है कि इट माइट बैकफायर। जैसे एक शराबी होता है, उससे ऑल ऑफ अ सडन अगर आप दारू पीना छीन लेते हो तो ही गेट्स इनटू विथड्रॉल सिम्टम्स। राइट। लाइकवाइज मैम, मैं और एक मेडिकली चीज बोलना चाहूंगा। एक चीज आजकल के बच्चे और एडल्ट फेस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज द फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ओके, व्हाट इज दैट? फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम मतलब आपके आजू बाजू आपका मोबाइल नहीं है, आप किचन में खाना पका रहे हो, आपका मोबाइल बेडरूम में पड़ा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा भास हो रहा है, यू आर गेटिंग दोस डिल्यूजन, आभास हो रहा है कि मेरा जो फोन है वो अंदर बज रहा है, मुझे मैसेज आया है। व्हाई? बिकॉज योर माइंड इज सो प्री ऑक्यूपाइड, द मोबाइल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। राइट, इट्स आवर एक्सटर्नल हार्ट। एक्सटर्नल हार्ट, करेक्ट। अगर आप देखोगे एयरपोर्ट पे जहां पर वो चार्जिंग पॉड लगे होते हैं, तो somebody, कोई ऐसा चिंता में आ गया, हमको लगता है क्या हो गया, कुछ हाईजैक तो नहीं हो गया, लेकिन पूछते हैं कि सर क्या हुआ, कैन यू फाइंड अ मोबाइल पॉइंट, एनी चार्जिंग पॉइंट एनीवेयर, आई वांट टू चार्ज माय फोन। तो इमेजिन द काइंड ऑफ dependence that we've got on screens Yes. and also on the social media. Yeah, Right? we have got one case of depression, complete depression, because that girl, 18-year-old girl, she had got new iPhone and उसके हाथ से वो नीचे गिर गया, तो थोड़ी सी क्रैक आ गई उसको, एंड सडनली शी डेवलप दैट डिप्रेशन, क्योंकि वो आईफोन था, उसके ऊपर से वो नीचे गिरा, एंड शी वाज सो स्कैर्ड। आई डोंट नो वेदर शी वाज स्कैर्ड ऑफ हर पेरेंट्स और वेदर शी वाज स्कैर्ड कि उसके हाथ से फोन गिर गया, एंड अभी बहुत दिन के लिए शी इज नॉट गोइंग टू यूज दैट फोन करके। तो देन वी हैड टू टेक हर थ्रू ऑल द थेरेपी एंड एवरीथिंग, एंड नाउ शी इज परफेक्टली ओके। बट दिस इज आई एम सेइंग कि मतलब इतना उनको वो एंजाइटी हो जाता है कि अगर जरा भी कुछ फोन के साथ हो जाए, मतलब किसी के साथ कुछ हो जाए, अपने खुद के शरीर के साथ कुछ हो जाए, तो पीपल आर नॉट सो वरीड टुडे, बट देन एनीथिंग गोज रॉन्ग विद देयर फोन, फिनिश, दैट्स द एंड। So this reminds me of this case which I saw on Facebook, कि एक छोटा सा वीडियो शेयर हुआ था जो बहुत वायरल हुआ था, कि उसका एक जो लड़का था उसका सेलफोन गिर गया चलती ट्रेन से, एंड द ट्रेन वाज जस्ट अबाउट टू लीव द प्लेटफॉर्म। ओके, इट टुक अप अ लिटिल स्पीड, और ये जो बच्चा है वो चलती हुई ट्रेन से वो कूद गया, क्योंकि उसके मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। तो रिस्किंग लाइफ। सो और एक चीज है जो पेरेंट्स ट्राई कर सकते हैं, या ऑल ऑफ अस कैन ट्राई, इज अ डिटॉक्स प्रोग्राम। ओके, अगर फ्लडिंग नहीं करना है, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज फ्लडिंग के लिए बहुत जिगर चाहिए। ओके, तो अगर No, but otherwise, Dr. Mihir, I mean, if I talk about adults, because so many of our promotions are happening on Facebook, right? I mean, जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ, जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, yes, तो वो भी तो दुनिया को दिखाना है, तो we can't do that complete जो flooding का जो आप बता रहे हैं. So this detox, because we have been also using, so it will be very nice for our audience to know what is this detox plan. yes. So सबसे पहले एक माइंडफुली हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं मोबाइल पर कम रहना चाहता हूँ। ओके, और इसके लिए आपको कुछ एप्स भी मिलते हैं जिसको बोलते हैं मोमेंट और चेकी। ऐसे दो एप्स है, मोमेंट ऐप या चेकी ऐप, दैट टेल्स यू दैट हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। ओके, तो से सपोजिंग अगर मैं दिन के 98 मिनट्स अगर सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूँ, तो देन आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग एंड कीप ऑन टेलिंग माई सेल्फ कि अब मैं शायद 98 मिनट से मैं 80 मिनट्स पे चला जाऊंगा। ओके, 80 मिनट से कम करके मैं 50 मिनट्स पे चला जाऊंगा। सो व्हाट एम आई डूइंग, मैं ग्रेजुअली मोबाइल यूज या तो सोशल मीडिया यूज धीरे 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 कम कर रहा हूँ। नाउ इफ आई एम सक्सेसफुली एबल टू डू दिस, तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। तो रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ब्रेन को मैटर करती है, और वो रिवॉर्ड क्या दे सकते हो, दैट व्हाट एवर यू लाइक डूइंग, मे बी गोइंग फॉर अ वॉक, ईटिंग चॉकलेट, स्पेंडिंग एंड गॉसिपिंग सम मोर टाइम विथ योर बेस्ट फ्रेंड, और व्हाट एवर यू फील लाइक। तो वो रिवॉर्ड इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, तो धीरे धीरे करके यू कैन ओनली स्टिक टू 1 hour द एंटायर डे ऑन सोशल मीडिया, which is healthy.
क्योंकि एज वी राइटली सेड कि कोई भी कॉइन्स के दो साइड्स होते हैं, तो वन पॉजिटिव साइड इज ऑल्सो कि आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, आप कोई अच्छी चीजें बाजार में आई है उसको देख सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, देर आर ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन जहां पर कंपैरिजन की बात आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है, तब से आपका आपके ब्रेन को इफेक्ट होना वो शुरू करता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ माइंडफुल यूसेज इज व्हेन इट क्लिक्स टू योर माइंड, ओ माय गॉड स्टॉप स्टॉप मिहिर, आई फील यू हैव स्टार्टेड गेटिंग इनटू कंपैरिजन, वहां से आप मोबाइल यूज को कम करना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्स प्रोग्राम दैट यू कैन वर्क। No, wonderful, Dr. और Mir. मैम Then, ऑल्सो yeah, और एक चीज कि अगर से फॉर एग्जाम्पल आज पेरेंट्स बोलते हैं कि आज मेरे बच्चे ने सिर्फ 1 ही घंटा मोबाइल देखा है, ओके मुझे किसी डॉक्टर ने बोला था 1 ही घंटा 2 घंटा दिखाओ, बट टुडे माय चाइल्ड ओनली वॉच फॉर 1 आवर, तो कल वो 3 घंटा देख लेगा। okay. हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम 2 दिन का खाना एक दिन में नहीं खाते हैं, सो दैट 1 आवर गॉन इज गॉन। ओके, तो 20 मिनट आप फिर वो 1 घंटे के यूज को कैसे डिवाइड करते हो वो आपके ऊपर है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू शो योर चिल्ड्रन। ओके, यस समबडी राइटली सेड पेंडेमिक है तो एक एक सोशल मीडिया ही सहारा है, राइट? सो हाँ, सोशल मीडिया क्यों सहारा है? क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। नाउ आई विल टेल यू आई वुड नॉट नेम द सेलिब्रिटीज को कोविड हुआ तो जैसे दुनिया इधर की उधर हो गई, ओके, एंड द मैसेज स्प्रेड्स लाइक फायर, Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर पे किसी सोल्जर को कोविड हुआ तो वो हम तक पहुंचता ही नहीं है। ओके, ऑल्सो इतने केसेस बढ़ गए दैट इज ब्रिंगिंग मोर एंजाइटी इन अस एंड वी आर पासिंग इट ऑन टू आवर चिल्ड्रन। तो ये कोविड में हम लोगों ने बच्चे के एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी कितने देखे। तो पेरेंट्स आजकल ऐसा देख रहे हैं कि आप यू नो नो ऑनलाइन स्कूल शुड हैपन, but unfortunately those parents are sitting, their children are sitting and YouTube पे वो लोग अपना वीडियो बना रहे हैं या फेसबुक पर वो लोग चैट कर रहे हैं मैसेंजर पे, so then I believe this is more conflicting. Yes. So compensatory strategies ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज 1 घंटा कम यूज किया तो कल 1 घंटा एक्स्ट्रा यूज कर ले, so that has to be avoided. Third thing that you can try, especially teenagers जो सोच सकते हैं, so that's actually called as a triple pack technique. ट्रिपल पैक टेक्निक में क्या होता है, ये तब पॉसिबल होगा जब हम घर के बाहर जाते हैं। So now all of us have 3 things in hand. One thing is wallet, one thing is either our vehicle key, and the third thing is mobile. तो आप कॉन्शियसली ऐसा ट्राई करो कि whenever I am going down, मेरे बिल्डिंग में मैं सिर्फ चक्कर लगाने जा रहा हूँ तो आई एम यूजिंग द डबल पैक टेक्निक एंड नॉट द ट्रिपल पैक टेक्निक। तो ये जो चीज है वो भी माइंडफुली हम कर सकते हैं। तो somebody beautifully wrote in the chat window self control, Yeah, छोटा very सा वर्ड important. है, मैंने घुमा घुमा के बोला, ये एक सिंपल सा वर्ड है सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल और रातों रात नहीं आने वाला है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। सो मैजिक रूल ऑफ 21, आज 5 मिनट कम कर दो, कल 10 मिनट कम कर दो, परसों 15 मिनट कम कर दो, और ऐसा करके अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देते जाओ। सो दैट विल हेल्प यू टू कर्ब योर सोशल मीडिया टाइम। Yeah, thank you so much, Dr. Mir. It's really enlightening. And Abhi, since we are talking about social media, can we just talk about more on this cyberbullying and crime? क्योंकि आज मोबाइल जैसे आपने बताया सबके हाथ में, इंटरनेट सबके हाथ में है, तो उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ साइबर क्राइम और ये जो बुलिंग होता है। तो अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें बताइए कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ओके मैम, विथ योर परमिशन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट श्योर। अगर मैंने मेरा फोटो कहीं पे देखा, ओके, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरा जो ब्रेन एनर्जी है वो एक्स्ट्रा 40% एक्टिव हो जाएगी। ओके, या आई बिलीव आप नेट
there's some network issue at your end, man. Yeah. So if I see my photograph or if I see my name in one particular place, so wahan par, am I audible? Yeah, I think in between the network is little fluctuating. I think it's your network. Yeah. Sorry about that. Yeah, because I'm also watching this live on Facebook, so I can see I'm Yeah. looking Hello. quite okay, normal, but then आपका in between fluctuate हो रहा है थोड़ा. Okay, ma'am. Yeah, Am ठीक I है. Now audible now? continue. Yes. You are audible. Continue. Yes. So when I get the number of likes, when I get the number of shares, when I see the number of views, तो वो जो 40% मेरा जो brain active होता है, अब वो मुझे लेकर है, मेरा पूरा attention अपने आप के ऊपर है, तो then it activates 80%. Okay? और वो 80% activation के कारण क्या हो जाता है? I become more self-centered. मैं अपनी दुनिया अपने आजू बाजू ही बनाने लगता हूँ, that these many people are liking me, following me and therefore I am good. तो लोगों के अप्रूवल पर हम ना जिए, ओके, अपने डिसीजन मेकिंग्स दूसरों, हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे देखे हैं उस हिसाब से ऑल्टर ना करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज है विच आई वुड लाइक टू शेयर. कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपने जो साइबर बुलिंग का बोला, सो पेरेंट्स को यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ whom आर योर चिल्ड्रन इंटरैक्टिंग, टॉकिंग. ओके, उनके फ्रेंड्स वगैरह जो है वो कौन है, बिकॉज एंड स्पेशली द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. हेलो. Yeah, you are audible. Yes, especially the school going children parents, उनको ये देखना है कि with whom is your child interacting, वो adult है अगर, तो वो क्या बात हो रही है. because काफी बार कैसे होता है, साइबर बुलिंग मतलब क्या, एक बुलिंग ये होता है जो फिजिकल बुलिंग होगा कि कोई हमसे पावरफुल व्यक्ति आकर आपके बच्चे को या हमको डराता है, धमकाता है फिजिकली, ये हो गया फिजिकल बुलिंग. लेकिन अगर साइबर बुलिंग की बात करते हैं तो कोई हमें डरावने मैसेजेस भेजता है, कोई हमें ऐसा बोलता है कि अगर तूने तेरा ये पिक्चर मुझे नहीं दिखाया तो मैं तेरे पेरेंट्स को फोन करके, तेरी सब डिटेल्स मेरे पास है, मैं तेरे पेरेंट्स को फोन करके मैसेज करके तेरे सब पिक्चर्स वगैरह ओपन कर दूंगा, मैं आकर बोल दूंगा कि तू मेरे से बात कर रही है. राइट? तो दीज आर सर्टन थिंग्स जो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है. तो दिस इज नथिंग बट साइबर बुलिंग. तो पेरेंट्स हैव टू इंश्योर के बच्चा किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, बिकॉज यू नेवर नो एक छोटे से 4x6 के स्क्रीन में बच्चा किसके साथ बात कर रहा है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो there are so many techniques through which you can have an access over your child's phone, but I'm not saying that to invade into your child's privacy. आप कोई नहीं होते हो कि आप चाइल्ड के फोन में आप जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और स्टिल स्मॉल एंड यंग दैट दे कैन बी कैरिड अवे बाय समथिंग. है ऑल्सो लोग सोशली आपके बारे में क्या, सपोजिंग इफ देयर इज अ चैट हैपनिंग और चैट पर लोग आपको बुली कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा लिख रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट इट इज एन इमोशनल बुलिंग. कि कहीं ना कहीं जो है वो यू आर फीलिंग बैड अबाउट, पीपल आर टॉकिंग बैड अबाउट यू. तो डू नॉट यूज सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म with someone. And even hacking, अभी ये बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का, हेलो, can you hear Dr. Mihir? Yeah, I would like to also talk Yes. about hacking, account hacking. Yes, ma'am. Yes. Yeah, so if you want to, I mean, share some of your views on that. Ki how do we take that safety measures on account hacking? राइट. तो एक कुछ फोन्स में आजकल एक ऐसा प्रोविजन निकला है जहां पर यू कैन लॉक योर प्रोफाइल. राइट? तो वो एक अच्छा मीडियम है जहां पर आप आपकी डिटेल्स सब लोगों को ओपनली नहीं, सब लोग ओपनली नहीं देख सकते हैं. आप ये भी देखोगे दैट देयर आर सर्टेन एप्स
am I audible? Yes, yes, yes. Hello? Yeah, go ahead, go ahead. Audience? या तो ऐसे कुछ एप्स भी है जो सबसे पहले आपको एक सिक्योरिटी प्रोसीजर के थ्रू लेकर जाएंगे. देन दे गिव यू अ प्रोविजन ऑफ लॉकिंग योर प्रोफाइल. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे दैट यू कैन फॉलो. ऑल्सो जब आप आपके पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हो तो आप ये भी चूज कर सकते हो कि वो पिक्चर्स कौन देखे, आपके क्लोज सर्कल वाले देखे या इट इज ओपन टू एवरीवन. तो वो चीज का फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो दैट योर पिक्चर्स आर नॉट ओपन टू एवरीवन. और एक इम्पोर्टेंट चीज, आज कोई भी अपने मोबाइल से किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकता है और फिर अगर उसको एक गंदा सा पिक्चर बनाना हो तो एक न्यूड बॉडी के ऊपर अगर वो लोग आपका फेस ऐसे चिपका देंगे तो जिसको बोल हाँ, तो विच मीन्स दैट इवन दीज थिंग्स आर पॉसिबल. तो स्क्रीन गार्ड करके भी एक ऐसा आता है विच द एप्स अलाउ यू टू डू. सो आप वो करने के बाद किसी का स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हो. तो दीज आर सम मेजर्स जो सोशल मीडिया पर अकाउंट होने के बावजूद यू कैन प्रैक्टिस. Okay, so I think it has been really wonderful to get a lot of learnings on the social media and social media stress, ki how we can still be on social media but without maybe reducing stress. So now I think I will open this forum for our participants if they Madam, you are mute. Madam, you are mute. Yeah, thank you so much, Dr. Mihir. It was really a wonderful session. बहुत सी बातें हमारे समझ में आई कि सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए, ज्यादा स्ट्रेसफुल ना होके, like how we can manage still social media, because we can't avoid, in the era of social distancing, we cannot avoid social media. लेकिन उसे अगर हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं तो दैट कैन रियली लाइक एनरिच आवर लाइफ. बट एट द सेम टाइम नाउ आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन. सो आई वुड लाइक टू आस्क पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है डॉक्टर मीर के लिए, सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. आप लोग उनको पूछ सकते हैं. Can we talk also? Anything? Yeah, you can. Yeah, you can unmute your mic and you can talk. सर मुझे इससे पूछना था, जैसे क्या होता है हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, पूरा दिन ऑफिस का काम है, शाम को हमें रहता है अपने लिए टाइम निकालना है, सोशल मीडिया पे रहते हैं. एज ए पेरेंट्स हम लोग ये सोचते नहीं है कि मदर फादर दोनों बैठ के अपने बच्चे को हम टाइम दें, वो नहीं हो पाता है. तो इस केस में जैसे एक सिंगल पेरेंट चाह रहा है और दूसरा पेरेंट नहीं चाहता है, तो क्या क्या करना चाहिए जिससे दोनों इन्वॉल्व होके वी कैन अवॉइड सोशल मीडिया फॉर सम टाइम एंड देन कैन कंसंट्रेट ऑन आवर चाइल्ड? I would say I take this more as a suggestion for our audience कि अगर पेरेंट्स और मम्मी और डैडी दोनों साइड पर अगर अपना मोबाइल रख के उस पर्टिकुलर, तो प्लानिंग अ फैमिली टाइम टुगेदर, ओके, जहाँ पर कभी आपने कार्ड खेले, कभी आपने कुछ स्टोरीज बोली, या कभी आपने कुछ डिस्कशन किया, कभी यू आर रीडिंग अ बुक टुगेदर. सो ये चीज अगर हम इकट्ठे बैठकर कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने अपना सोशल मीडिया कम ही कर दिया. एंड यू कैन यूज दिस स्पेशली व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट अराउंड. लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों के सामने ऐसा ना बोले, देख तो कितना लाइक मिला, इसको कितना मिला. दैट इज समथिंग विच विल ट्रिगर इन द चाइल्ड माइंड के लाइक बहुत बड़ा खाना है. राइट सर. Yeah, any other question? Good evening, everyone. So I have a question for Dr. Parekh. The question is that, being in this current work from home situation, or being in this scenario where, either of the parents are working, what happens is majority of the times the parents are not able to communicate effectively to the child. When I say communicate effectively, in the sense, because of the work stress, social media is different. Because of the work stress, the parents are giving a wrong impression to their child
कि बाबा डैडी बहुत बिजी है या मम्मी बहुत बिजी है, so the child gets super aggressive in these kind of scenario, which is an observation with me and my wife over here, you know that हम लोग कभी कभी अपना गुस्सा या फिर अपना एग्रेशन या वर्कलोड एक 3 साल की बच्ची के ऊपर या फिर एक 11 महीने के बच्चे के ऊपर कभी कभी indirectly ho jata hai, not intentionally, unintentionally it happens. So you know how to sort of, yes, you rightly said ki we have to make a family time should be there, but current scenario is such that work is taking a toll of every individual, irrespective of whatever how much ever they try to squeeze as much as they can, but it's taking a toll. So is there some kind of relaxation approach or a sort of time in time out or switch in switch off mode? Okay, so one of the answers to this would be that the parents can actually follow a switch in switch off mode if it is possible. Taking permission from the child, हम बहुत different sound करेगा बच्चे से क्या permission लेनी, but making the child feel valued that you know mama and dada are genuinely busy with something, we need time. क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम लोग एक मैसेज पास कर रहे हैं बच्चे को जिसको बोलते हैं इमोशनल निग्लेक्ट, which is not at all intentional, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर वो असर पड़ रहा है that my parent is not giving me attention. So one of the best ways would be exchanging good eye contacts. Okay, taking permission from the child, I need 1 hour, पापा शाम को ये बोलेंगे, मम्मा आपको दोपहर को बोलेगी. कोई ऐसे काम, अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो कुछ ऐसे काम जहां पर आप और आपके बच्चे मिलकर कुछ फैमिली चोर या घर के काम साथ में कर सको, where the child feels that he has spent some time with you. ऐसी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा इमोशनल निग्लेक्ट कम फेस करता है, एंड द पेरेंट्स डू आल्सो डू नॉट फील गिल्टी अबाउट दिस. Yeah, and somebody is also giving advice to sir's question that we can do meditation or yoga. So it can be a good exercise, you know, like doing as a family time together. And certain hobbies can also help you, you know, like instead of getting hooked to social media, get engaged into some hobbies. कुछ art कीजिए साथ में, कुछ गाने गाइए साथ में. And I think we all need to take out some time for our children. I mean, the work and all तो बहुत होता रहता है, but ये जो time रहता है बच्चों के साथ, you need to spend, you need to invest in them. Because it is, I always tell, जब भी मैं parenting sessions करती हूँ, मैं सीधा parents को बोलती हूँ, भाई बच्चों ने आपको application नहीं दिखा था कि मुझे जन्म दो करके. It was your choice, it was Right. your decision. So now we have to fulfill, जैसे हमारी responsibility रहती है towards our work, we have more that responsibility towards our children also. Sir, Yes, yes, ma'am. to share a situation, my child is a very happy child. She is very happy, playful child. But what happens there, as the pandemic is going down, I at times get very stressed. So the moment I am stressed, she started behaving like very angry, agitated. So that is not, you know, soothing me. That is increasing my stress at that moment. And then I don't know how to handle her. So how, because she keeps on nagging about why are you behaving like this? Why are you shouting? Why can't you sit? Why are you not doing things? So how to handle such things? How to give her a time of कहीं ना कहीं it is necessary where you need to work on your own stress first, because कहीं ना कहीं this is also passing a kind of anger onto your child. So which means that the child will start eventually learning that अच्छा गुस्से का आंसर इज ओनली गुस्सा, बिकॉज व्हेन आई एम गुस्से से मैं मम्मी को अगर बोल रही हूँ तो मम्मी मुझे सामने गुस्सा ही कर रही है. तो समवेयर वर्किंग ऑन योर ओन इमोशंस, अगर कुछ एडिशनल हेल्प अगर घर के मेंबर से मिल सके टू ईजन अप योर स्ट्रेस, टू ईजन अप योर बर्डन, टू distract your child healthily, not mobile, distract your child healthily in some activity, ऐसी कोई चीज को लेकर फिर आप
बच्चों के साथ मिलकर आपकी हॉबी परस्यू करो. फॉर एग्जांपल गार्डनिंग है, और मे बी प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर, मे बी वॉचिंग जस्ट अ ह्यूमरस मूवी टुगेदर, अ कॉमेडी मूवी टुगेदर, दैट कैन ईजन अप आवर स्ट्रेस. और हमेशा बच्चे एक ही चीज पिकअप करेंगे, छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा हो सकती हूँ मेरी मम्मी की तरह. That message should not actually go into your child. There is always another response, an alternative response called as patience and being quiet. I know it is difficult, but we have to train our children, train our mind that way. Because Because once in a week, it happens like once in a week I'm losing it. Not on a daily basis, but once in a week I'm getting so stressed and I'm losing it, and then I want like time out for happy. But I am happy that you are able to figure out कि ये हफ्ते में एक बार हो रहा है. So which means कि आप इस चीज पर conscious हो. Now since you are conscious, आप इसको 9 दिन खींच कर लेके जाओ. So 2 days you are extending. Okay. At the same time, try using anger management technique. For example, आप breathing करो. Whenever you are feeling angry, तो उस time पर you leave the situation. आपको पता है टाइम हो गया है, मेरे बच्चे स्कूल के लिए रेडी है, लेकिन उसके बाद भी इसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है. कुछ चीजें बच्चों के ऊपर छोड़ो. Let them also learn to face the consequences. हर चीज अगर आप करके अगर उनको दे दोगे, तो फिर उनको ऐसे लगेगा कि हाँ चलो मम्मी तो आके सिर्फ चिल्लाएगी and then I'll quietly wear my uniform. That should not happen. Dr. Mihir, you can also we are tell about your book. I think that will be helpful for many parents, right? Sure. Yes. So I will show how. I mean, I've written this book. The book is called as Life Tweets. Okay. I'll also write it in the chat box. So Life Tweets book is for parents, and the book is available on Amazon. My second book is going to come again. It's Life Tweets 2, and that is also for parents. So मेरे ख्याल से ये जो second book है, वो it is teaching children compassion and gratitude. जो अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो जनरेशन है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, बिकॉज द ओल्डर जनरेशन इज नॉट अलाउिंग अस टू डू. ओके. So I don't know if it appears on the screen, but it looks like this. It's with a black cover. So the book is going to get launched on 17th of August. तो ये जो बुक है उसके अंदर बहुत सारी पेरेंटिंग टेक्निक्स, टिप्स, कुछ काउंसलिंग केसेस जो शायद आपको आपके केस के साथ रिलेट कर सको. तो आई थिंक दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू. सिंपल होम बेस्ड घरेलू टिप्स है. आपको बाहर डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है. एज अ पेरेंट यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज आई एम अ पेरेंट who is also trying to improve every day. So as a from the parents point of view, ये बुक लिखी गई है. So thank you Dr. Mihir, and मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अगर किसी को डायरेक्टली उनको भी कनेक्ट करना है डॉक्टर मिहिर को, that is also possible. You can also contact us on our toll free helpline, because जो हमारी सर्विस है as you know, like I was mentioning earlier, it's absolutely free of cost. कोई भी कभी भी सुबह 9 से रात को 9 बजे तक फोन कर सकता है. It's a toll free number. We have a counselor, psychologist, psychiatrist on board who will be helping you, you know, like अगर आपके कोई भी इश्यूज है बच्चों को लेके, कोई भी समस्या है, बिहेवियरल इश्यूज है, एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज है, उनके एडिक्शन के रिलेटेड इश्यूज है, so this is our toll free helpline number. You can all contact us. You can take down the number. You can also Google the number. अगर आपको अभी नहीं लिखना है तो you can just Google Parisar Asha's helpline number and you will get our number. और ये सैटरडे संडे भी हमारी हेल्पलाइन खुली है. So feel free to talk to us because it's very important कि अगर right age पे अगर right issues sort out कर दिए जाए तो फिर we can actually see a better future for our future generation. And on this note, I would really like to thank very much from all the participants and from Parisar Asha, Dr. Mihir. It was really, really wonderful session. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. If you are able to hear me. Yes, but we can't see you. Yeah, in fact, my screen has